Hello everyone. Today we are going to learn some aspects of Java. It is a it is an important programming language and used in the various field. So actually is invented by Java was invented by James Gosling in 80s 90s, and Java is a language which is mm, used in various aspects like app development and also in JDBC, this type of things. And you can see here, uh, Java's syntax is a little bit different. For printing hello world, uh, you have to write like this other than other languages. It is bit complicated, and here you have to call a main function, and it is main class, public class main, it is main class, and this class name should start with a capital letter, and you should strictly use the class name as your file name. Like uh, if your file name is sum.java, then your class name would be sum, not main. After declaring this main class, inside the main class, it is the main function. The main function has some argument inside it. Here, string means it is declaring a string array, and it takes some arguments, and public is access modifier. You all know different kind of access modifier like private, default, this type of things. It is basically a part of oops, and void means return type, and that's it. For printing something, you are using system.out.print in Java. Here, print ln means new line. If you don't use ln, then it is not printing in the new line. Suppose if you print like I am trying here, here hello world is printed, and after that, if you print it like this, like this, here if you run, it will be showing Rahul in the new line. But if you remove the ln in here and then run, you can see it is printed at the same line. So it is like it, and then we go to some of the which method is often used to print text in Java. So it is println. Okay, and we go for here. Let's see some of the Java keywords. Okay, here is the list of Java keywords. Abstract. It is a non-access modifier used for classes and methods. इसका मतलब है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट ही किया जाता है क्योंकि अगर आप किसी और क्लास पे ये टाइप का मॉडिफायर एक्सेस करना चाहते हैं या इनहेरिट करना चाहते हैं, तो ये टाइप का क्लास यूज़ नहीं होगा। आपको एक्सेस मेथड या एक्सेस मॉडिफायर ये टाइप अगर मेंशन कर दिया तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे ही मेंशन करना पड़ेगा, अदर देन
दैट नहीं। इधर कुछ कुछ है, जैसे कैच, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग पे यूज़ होता है। कैर ये तो एक डेटा टाइप का है। क्लास तो हमने देखा, क्लास मेंशन करने के लिए है। कांस्टेंट, डिफाइन ए कांस्टेंट। फाइनल, ये नॉन, ये इम्पोर्टेंट है। फाइनल ये वाला, नॉन एक्सेस मॉडिफायर यूज्ड फॉर क्लासेस एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। ये देखना, नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। अगर ये आप मेंशन करते हैं किसी क्लास के अंदर, लाइक फाइनल सम वेरिएबल का नेम, तो वो आप चेंज भी नहीं कर सकते। ओवरराइड मतलब चेंज भी नहीं कर सकते, इनहेरिट भी नहीं कर सकते कोई दूसरी क्लास पे। सो इट इज़ लाइक दैट। ये बात है। ये पैकेज, पैकेज तो डिक्लेयर करने पे डिक्लेयर करते हैं पैकेज को। बहुत टाइप का पैकेज होता है। आप इवन एक जो फोल्डर बनाता है वो भी पैकेज के अंदर ही आता है। पब्लिक तो मैंने बोला, एक्सेस मॉडिफायर आप ये देख लेना थोड़ा। ये W3 की वेबसाइट पे अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत सारे कीवर्ड्स है। और अदर देन दैट, यहाँ पे स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स ये बाद में आएंगे जब स्ट्रिंग करेंगे। फिलहाल हम चले जाएंगे इंट्रो। What is Java? Java programming language is created in 1995 and it is created by whom? James Gosling. याद रखना, James Gosling. So, what? Why use Java? Let's see. It is platform independent. It can be used in any kind of platform here, and it is most popular programming language in the world. Remember it. एंड इट हैज़ ए लार्ज डिमांड। ऑब्वियसली पॉपुलर इसलिए है क्योंकि डिमांड बहुत सारा है। इजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज़, यस, बट सिंटेक्स थोड़ा अगर आपके पाले पे आ गया तो अच्छा बात है। देन वी गो टू हियर, हाउ टू इंस्टॉल जावा इन योर कंप्यूटर। बेसिकली मैं तो बोलूँगा कि अगर आपके पास VS कोड है, VS कोड पे एक एक्सटेंशन सर्च कर सकते हैं आप। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको VS कोड को। ये सपोज आप VS कोड इंस्टॉल किए हैं। VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसके बाद VS कोड ओपन कीजिए एंड यू कैन सी दैट, यू कैन सी here is a extension like thing. You can search here Java, and if you search Java here, you will found this package, Java extension pack for Java, like this. You can, मेरा तो सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, you can install it from here. And other than you have to install JVM, सर्च करना इधर JVM। सो वो सब दो तीन चीज़ें हैं। वो इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम पे जावा आसानी से चलेगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। आप इधर देख सकते हैं कैसे जावा इंस्टॉल करते हैं। चलिए देखते हैं सिंटैक्स की ओर। ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, मेन मेथड भी एक्सप्लेन किया है, आपको प्रिंट कैसे करता है वो भी बोला। लेट्स सी द आउटपुट। प्रिंट स्टेटमेंट के दौरान किया जाता है। डबल कोट के अंदर जो भी लिखेंगे वही आ जाएगा। ऐसे लिखेंगे तो वो एरर शो करेगा। ओके, एरर शो करेगा। ये वाला एरर कंपाइलेशन पे ही दिखाएगा। स्टैटिक एरर बोलते हैं इसको। डायनामिकली वो अलॉट नहीं होता। चलिए, प्रिंट नंबर कैसे प्रिंट करेंगे? ऐसे करेंगे तो नंबर प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसे? You can also put print element method to print numbers. However, unlike text, we don't put numbers inside double quotes. So नंबर प्रिंट करने के लिए आपको डबल कोट्स यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये देखते हैं। आप बोलिए क्या ये 6 आया? ठीक है, अगर अब होता है कुछ कुछ यही, अगर आप डबल कोट के अंदर दे देते तो ये एज इट इज आ जाता है। इसीलिए बोल रहे नंबर्स के लिए डोंट यूज डबल कोट्स।
ओके, ये तो मैंने आपको दिखाया, ये तो अच्छे प्रिंट करेगा। सो जावा कमेंट्स, कमेंट ऐसे सिंगल लाइन कमेंट होता है, ठीक है, दोनों स्लैश देकर। और डबल लाइन कमेंट के लिए ए यूज करते हैं, स्लैश स्टार एंड एंड्स विद स्टार स्लैश, ऐसे ऐसे होता है वो। सो यू कैन सी हेयर इधर, और ये एंड हुआ इधर, ये मल्टी लाइन कमेंट है जावा के। चलिए चले आते हैं जावा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। वेरिएबल मतलब है किस टाइप का डेटा वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं वो बताने वाला। सो कैसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है जावा पे, आप पहले वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर कीजिए। टाइप मतलब ये वाला सब टाइप है, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कैर, बूलियन। इंट मतलब इंटीजर, फ्लोट मतलब फ्लोट, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग, कैर मतलब करेक्टर, बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, इस टाइप का। उसके बाद आपका वेरिएबल का नाम दीजिए, उसके बाद वैल्यू असाइन कीजिए, लाइक इंट नम इक्वल्स टू 3 मतलब आपका टाइप है इंटीजर, वेरिएबल का नाम है num नाम, एंड उस पर आप वैल्यू असाइन कर रहा है 3, लाइक हेयर यू कैन सी string type of variable name which is assigned in by John। तो आप प्रिंट करेंगे तो जॉन प्रिंट होके आएगा, ऐसे। सो ऐसे वेरिएबल प्रिंट होता है, असाइन करते हैं और प्रिंट कराते हैं वेरिएबल को। एंड अदर देन दैट हम देख सकते हैं प्रिंट वेरिएबल तो वैसे ही करते हैं डिस्प्ले। मल्टीपल वेरिएबल कैसे प्रिंट कर सकते हैं आप, ऐसे आइडेंटिफायर्स। व्हाट इज आइडेंटिफायर, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम पे भी, और कभी कभी तो इंटरव्यू में भी पूछ लेता है। तो ऑल जावा वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम्स, मतलब आपका जो कोड स्निपेट है उसके अंदर दो सेम नेम का वेरिएबल नहीं हो सकता, आप नहीं यूज कर सकते, वो एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर ही देगा, ठीक है। तो these यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। आप जो अलग अलग नेम यूज करेंगे वो आइडेंटिफायर्स नाम पे जाना जाएगा। अच्छा, वेरिएबल का नेम असाइन करने में कुछ रूल है क्या? यस, देयर आर रूल्स। दे कंटेन लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर, डॉलर साइन, मस्ट बिगिन विथ लेटर। आप लेटर के अलावा कोई डिजिट, अंडरस्कोर या और कुछ साइन से स्टार्ट नहीं कर सकते। Should start with a lowercase letter and cannot contain white space। आप बीच पे गैप नहीं दे सकते, लाइक इधर देखिए एकदम कोई भी गैप नहीं है, इधर आप मिनट्स के बाद अगर गैप देते तो वो एरर देता, ठीक है। सो ये कुछ बात है। और नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब अगर आप लोअर केस अपर केस पे चेंज करते तो वो एरर नहीं देगा। चलिए रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। ये देखिए इंटीजर, फ्लोट सभी टाइप का डेटा स्टोर किया हुआ है, और उसको प्रिंट कैसे किया जाता है आप देख सकते हैं इसे, ओके, ऐसे ही प्रिंट होता है। ये रेक्टेंगल का है, कैसे एरिया कैलकुलेट होता है, आप स्क्वायर का कर सकते हैं, लाइक इधर एक साइड दे दिया 4, तो स्क्वायर का एरिया कैसे डिफाइन होगा आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, एक टास्क आपके लिए है। उसके बाद हम बाद के वीडियो में देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।